2013 AFC Cup semi-finalist, 16 Durand Cups, 3 NFLs, 2003 Asian Cup winner, the first Indian club to win an international tournament, over 150 trophies, the only Indian team to win the quintuples, that too 3 times, lakhs and lakhs of loyal fan base. इतना सब कुछ रहने के बाद भी आज East Bengal is struggling to even get into the ISL playoffs for the last 5 years. ऐसा क्या हुआ कि once the best club in India is in ruins right now. So guys, this is Football Uncut. आज हम लोग बात करने वाले हैं about the downfall of East Bengal. अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोस तो देखते हैं बट हमें सब्सक्राइब नहीं करते. वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस वीडियो. बहुत टाइम लगता है इन रिसर्च में. सो प्लीज डू अप्रिशिएट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ईस्ट बंगाल की हिस्ट्री, एंड फॉर दैट वी हैव टू गो बैक टू 1920s, जहां एक आइडेंटिटी और सम्मान की लड़ाई के वजह से ही ईस्ट बंगाल केम इनटू एग्जिस्टेंस. 1920s में जोरा बागान वर्सेस मोहन बागान के मैच के पहले जोरा बागान के स्टार प्लेयर शैलेश बोस को कुछ डिफरेंसेस के वजह से टीम से निकाल दिया जाता है, जिससे उनको बहुत बुरा लगता है. एंड सो टू फाइट अगेंस्ट इट, शैलेश बोस, सुरेश चंद्र चौधरी, तोरित भूषण रॉय, मोनी दास and many more influential people came together to give birth to East Bengal, ताकि ओपार बांग्ला के लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले फुटबॉल में. The club became a representation of the people from East Bengal, currently known as Bangladesh, especially the refugees and migrants who had come to Bengal during the partition of 1947. East Bengal ने तब से अब तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखा है, जहां पे they have seen sky high success and with that some very heartbreaking moments. East Bengal took 20 years to win their first ever trophy, जो था IFA First Division title. Then 1943 में IFA Shield, 1945 में डबल जहां पे उन्होंने CFL and IFA Shield जीता. Then in 1948 East Bengal created history where they defeated Chinese Olympic 11 in our home soil. Then in 1949 they became the first Indian club to win the treble, winning the IFA Shield, CFL and Rovers Cup. उस पीरियड हमने देखा the rise of the Poncho Pandavas. Even after that period, East Bengal gave many legends to Indian football, right from Krishanu De, Amol Dotto, Sham Thapa and many more. East Bengal की अगर recent success की बात करें तो their pinnacle came in 2003 where they won the 2003 Asian Cup in Indonesia. आप ही सोचकर देखो, एक इंडियन क्लब एक इंटरनेशनल स्टेज पे जाके उस कंपटीशन के हिस्ट्री में अपना नाम लिख कर आती है. ये अपने में ही कितनी गर्व की बात है. एंड ईस्ट बंगाल जस्ट डिड दैट. और उसके साथ साथ 2013 में ईस्ट बंगाल ऑल्सो रीचेस सेमीफाइनल ऑफ AFC चैंपियंस लीग 2. और उसके साथ साथ East Bengal used to dominate Indian football like you have never seen before. 8 Federation Cups, record 39 times CFL winners, जहां पे most consecutive times भी उन्होंने ही जीता है. A record 8 times, just wow. 16 Durand Cups, 29 IFA Shields, again the most. 3 NFLs, which was later known as I-League, where they had an unbeaten streak of 30 matches, which is still a record, and the first club to retain their title in 2003-2004 season. और अगर ईस्ट बंगाल की बात करें पर डर्बी ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता. जहां पे आज भी ईस्ट बंगाल इज लीडिंग मोहन बागान इन द टोटल नंबर ऑफ विन्स, जहां पे दे हैव वोन ओनली 5 डर्बीज in the last 5 years. सिर्फ वही नहीं, they also hold the highest margin record in Kolkata derby where they have beaten मोहन बागान 5-0. तो फिर उनके डाउनफॉल का रीजन क्या सिर्फ लक ही था? ईस्ट बंगाल ने लास्ट 30 इयर्स में 7 बार स्पॉन्सर चेंज किया है, जहां उनका सबसे सक्सेसफुल पीरियड आता है अंडर किंगफिशर. 1998 से 2018 तक किंगफिशर was East Bengal's major sponsor, and that gives rise to their legendary partnership.
जो एंड में आते आते उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रहा था। ईस्ट बंगाल वेर लूजिंग मैचेस एंड देयर रिजल्ट्स वेर नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री। एंड उसके साथ साथ विजय माल्या स्कैम ऑल्सो केम आउट। सो सब मिलाकर उनका यह पार्टनरशिप एंड होता है 2018 में। देन सीन में आता है क्वेस के अंदर ईस्ट बंगाल एक कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट्स देखती है, जहां पे नए प्लेयर्स आते हैं, नए कोचेस आते हैं, एंड विद दैट दे फिनिश बैक टू बैक एट सेकंड प्लेस इन आई लीग। नॉट बैड राइट। फाइनली इट सीम्ड कि ईस्ट बंगाल एक प्रोग्रेस के पाथ पर चल रही है। एट दैट पॉइंट आईएसएल को इंडिया का प्रीमियर और मेन लीग बनाने का डिसीजन लिया जाता है, और तभी कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलती है ईस्ट बंगाल ऑफिशियल्स में और इन्वेस्टर्स में, जहां पे ईस्ट बंगाल ऑफिशियल्स के कुछ अलग डिमांड रहते हैं विद आईएसएल, और वहीं पर इन्वेस्टर्स के कुछ अलग। जहां पे इन्वेस्टर्स जाते हैं टू आईएसएल ओनर्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग द आईएसएल, और वहीं पर ईस्ट बंगाल अलोंग विद द मेजर क्लब्स ऑफ आई लीग लाइक मोहन बागान, गोकुलम एक्सेट्रा डिमांड की कोई फ्रेंचाइजी फी के बिना ही उन्हें मेरिट के बेसिस पर आईएसएल में एंट्री मिले, जो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं होता। एज अ रिजल्ट क्लब ऑफिशियल्स और इन्वेस्टर के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है, एंड द इन्वेस्टर्स डिसाइड टू लीव द क्लब, जहां पे देयर आर्च राइवल मोहन बागान्स हेल्ड द हैंड्स ऑफ आरपीएसजी ग्रुप, फॉर्मर ओनर्स ऑफ एटीके, एंड एंटर्स इन द आईएसएल। और वहीं पर 2020 में ईस्ट बंगाल विदाउट एनी इन्वेस्टर और स्पॉन्सर्स पड़ी रहती है आई लीग में। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, आरपीएसजी ग्रुप सबसे पहले जाती है ईस्ट बंगाल के पास विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मर्जर, बट द ईस्ट बंगाल ऑफिशियल्स शट इट डाउन, एंड सो मोहन बागान ग्रैब्स द अपॉर्चुनिटी एंड दे टुगेदर एंटर आईएसएल। एज यूजुअल विदाउट इन्वेस्टर्स आईएसएल खेलना पॉसिबल नहीं था। देन comes a ray of hope. वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के रिक्वेस्ट पर ईस्ट बंगाल held the hand of श्री सीमेंट्स and enters in the Indian Super League. सबसे पहले सीजन में they finished at 9th, and उसके बाद के सीजन में they had their worst performance where they finished in the last position. 2022 में अगेन एक इन्वेस्टर्स और क्लब ऑफिशियल्स के झगड़े के वजह से श्री सीमेंट्स डिसाइड टू लीव ईस्ट बंगाल। देयर इट वाज, अगेन ईस्ट बंगाल वाज विदाउट एनी इन्वेस्टर और स्पॉन्सर्स, जिसके बीच ग्लेजर्स, यस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला ही ग्लेजर्स, उनके साथ भी रूमर्स आता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग ईस्ट बंगाल, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता। देन अगेन इमामी कम्स एज देयर मेजर स्पॉन्सर इन 2022। इतना कांस्टेंट इन्वेस्टर चेंज एक क्लब को कभी एक स्टेबिलिटी नहीं देती, जिसके वजह से अ क्लब सफर्स अ लॉट, जहां पे ईस्ट बंगाल को एक ट्रांसफर बैन भी मिलती है फॉर अ सीजन फॉर नॉन पेमेंट टू प्लेयर्स, जिसके वजह से ईस्ट बंगाल एक प्रॉपर टीम भी नहीं बना पाती, एंड सो दे कीप ऑन सफरिंग। आपने एक पैटर्न नोटिस किया ही होगा, हर एक मेजर डील ब्रेकिंग इंसिडेंट्स में क्लब ऑफिशियल्स वेर मेजरली इन्वॉल्व। सो क्या फिर कांस्टेंट स्पॉन्सर चेंज या क्लब ऑफिशियल्स के हर एक बात पे इंटरफेयर करना ही मेन रीजन था बिहाइंड ईस्ट बंगाल्स डाउनफॉल? In last 5 years, East Bengal changed their head coach 5 times. जहां पे we have also seen the legendary Liverpool player Robbie Fowler also became their coach. हमने ईस्ट बंगाल के कोच होते हुए हमारे फॉर्मर इंडियन नेशनल टीम के कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को भी देखा, बट ईस्ट बंगाल हैड देयर वर्स्ट फेज अंडर मानोलो दियाज, जहां पे ईस्ट बंगाल फिनिश करती है एट द लास्ट पोजीशन विथ जस्ट 1 विन। इतना बार जब कोच चेंज होता है टीम में कभी एक स्टेबिलिटी नहीं रहती, एक प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं रहता, एक प्रॉपर यूनिटी कभी नहीं रहती, एंड सो ईस्ट बंगाल कीप्स ऑन गोइंग टुवर्ड्स अ डार्क एंड। और तभी 2023 में एक रे ऑफ होप बन के आते हैं फॉर्मर बेंगलुरु कोच कार्ल्स क्वाद्रत। ही विन्स देम देयर फर्स्ट एवर ट्रॉफी इन 12 years, जहां पे वो जीतते हैं द कलिंगा सुपर कप एंड गेट्स अ पोजीशन इन द AFC कॉम्पिटिशन। और सिर्फ वही नहीं, दे ऑल्सो बिकम द फाइनलिस्ट इन डुरंट कप, एंड वेट अभी और बाकी है, दे बीट मोहन बागान 2 times in a single season for the first time in years, all under his period of just 40 matches, जिसके बाद से कार्ल्स क्वाद्रत की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है among the East Bengal fans, and why not, they see a new ray of hope in the form of कार्ल्स क्वाद्रत। और उसके साथ साथ in the beginning of the 24-25 season, East Bengal drops money in the Indian transfer market like crazy। हमें एक ऑल टाइमर ट्रांसफर विंडो देखने को मिलती है, जहां पे दे बाई
जिक्सन सिंह, हेक्टर यूस्ते, मादिता लाल, डेविड, देवजीत मुजुमदार और उसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ट्रांसफर्स इन इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री वेयर they bring in Anwar Ali from their arch rival Mohun Bagan, making them the highest spenders in the ISL this season. उसके साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज भी करती है. फाइनली इट सीम्ड कि ईस्ट बंगाल एक सक्सेस की पाथ पे ही चल रही है. फिर अचानक से क्या हुआ? ईस्ट बंगाल बैक टू बैक 5 मैचेस हारती है. उसके साथ साथ फैंस बिकेम वेरी एंग्री ऑन कार्ल्स क्वाड्राट, जिसके वजह से he decides to resign himself and leaves the club. इतना कांस्टेंट कोच और मैनेजमेंट चेंज किसी भी क्लब को ही अफेक्ट कर सकती है. We have seen this example with Manchester United and Kerala Blasters too. एक कोच और मैनेजमेंट को अगर प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाएगा, then he can never implement proper tactics or build a set team. बट एक टीम का रिजल्ट सिर्फ कोच और उसके टैक्टिक्स पर ही डिपेंड नहीं करता. It majorly depends on the players and their fitness too. एक कोच तो सिर्फ टैक्टिक्स ही दे सकता है, बट थिंग्स लाइक फिटनेस, प्लेयर IQ एंड मेनी अदर थिंग्स सब डिपेंड करता है ऑन द प्लेयर्स एंड प्लेयर्स ओनली. करंटली ईस्ट बंगाल टीम का एक मेजर प्रॉब्लम है उनका फिटनेस और प्लेयर केमिस्ट्री. हमेशा सुपरस्टार प्लेयर्स या हाइप प्लेयर्स को खरीदने से ही सक्सेस गारंटीड नहीं होती. वी हैव सीन इट अगेन एंड अगेन इन फुटबॉल हिस्ट्री. और उसके साथ साथ फिटनेस नहीं रहने से प्लेयर्स विल गेट इंजर्ड और दे कांट प्ले द होल मैच इन द सेम फ्लो. ये तो बेसिक है भाई. और इंजरीज इस सीजन का एक मेजर फैक्टर रहा है बिहाइंड देयर डाउनफॉल. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, बट सम प्लेयर्स हैव टू डेफिनेटली लीव दिस क्लब राइट नाउ. एंड फॉर द फैंस, स्टॉप डिफेंडिंग देम. दे हैव टू लीव भाई. इफ यू वांट द बेटरमेंट ऑफ योर क्लब, you have to let them go. See, on paper, East Bengal had one of the best team in ISLs this season. अगर current situation और future aspects की बात करें, तो currently East Bengal have appointed the former successful coach from Bangladesh Premier League, Oscar Bruzon. उसके अंडर कुछ तो promising results East Bengal को मिली है. भले ही end में आते आते East Bengal had a disappointing ending again, but still club में कुछ promise is clearly visible. See, on paper, East Bengal had one of the best teams in ISL this season. They had the potential to give a way better result than they have given. उनके क्लब को ठीक करने के लिए बहुत सारे मेजर स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मैनेजमेंट. ईस्ट बंगाल मैनेजमेंट हैव टू गिव आंसर्स टू द फैंस. आपने देखा ही होगा कि कैसे क्लब ऑफिशियल्स ऑलवेज इंटरफेयर करते हैं इन मेजर डिसीजंस एंड स्पॉइल्स देम. For this, the one role they definitely need is of a sporting director. इतना बड़ा क्लब, but there is still no sporting director in this club. Shocking, right? एक sporting director ही डिफाइन करती है कि कैसे क्लब फंक्शन करेगी, कैसे कैसे प्लेयर्स आएंगे, and it's very essential for the future development of a club. So a sporting director is definitely needed. एक मैनेजमेंट ओवरहॉल की भी जरूरत है, जहां पे दे हैव टू गेट न्यू मेंबर्स फॉर द क्लब हु विल ओनली थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द क्लब. और उसके साथ साथ प्रॉपर फिटनेस कोच भी लगेगा ताकि प्लेयर्स कैन हैव प्रॉपर फिटनेस थ्रू आउट द होल सीजन. सी, ऑस्कर ब्रूजॉन इज अ प्रूवन कोच. इफ यू गिव हिम द प्रॉपर टाइम एंड सपोर्ट ही नीड्स, he will definitely give proper results. Some players have to improve their performance too. If they don't, they should leave the club right now. To be very honest, if this downfall keeps going on, जो players अभी अच्छे खेल रहे इस बंगाल स्क्वाड में, they will definitely leave in the future. Because क्यों कोई अपना फ्यूचर बर्बाद करेगा यहाँ पे रह के, if they see no development and no progress. And most importantly, East Bengal needs their fans the most right now. See, एक गंदा फेस जा रहा है, that is absolutely true. And this phase only tests the loyalty of the fans, which will be very essential for their comeback, which I am sure they will do in the coming future. See, Bengal football and Indian football is definitely incomplete without East Bengal. I hope they come out of this bad phase soon and bring happiness and hope in the faces of East Bengal fans again. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें. और उसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. ऐसा कंटेंट आपने इंडियन फुटबॉल में कभी नहीं देखा होगा, दैट इज गारंटीड. सो दिस इज फुटबॉल अनकट
See you in the next one.